आपके इंटरव्यू में दो पैरों की मूवमेंट चेक करो। हाँ हेलो वालेकुम सलाम जी। I just check one to mic check. Hello. Has been in Pakistan, as far as I know, for 35 years now, and meanwhile, the main problem this animal had to face over the last 3 decades is that he's alone. And as human beings, as well as most animals, they need company of their kind. So just imagine you have to live alone for 35 years and no one of your kind. And that was his fate. So he had to live alone and he suffered hard from that. And fortunately, the Austrian organization got aware of this situation, and with the support of the local population here, of the local government, of the government as a whole of Pakistan, it's possible now that Kavan can finally, after more than 30 years, again live in the company of other animals of his kind. Kavan will feel better if he will live in Cambodia? For sure, for the simple reason that he has company of his own kind. He's not lonely anymore. And that's the main thing, not to be lonely. As we all humans know, being lonely is one of the worst things that can happen to us. And company and family is the most important thing that we all know in our life. And now, finally, this Kavan can have that as well. Thank you so much. Love him. So Kavan came to us as a gift in 1985 from Sri Lanka, and personally I came here as a toddler and I'd never seen an elephant in the flesh before. Passed away in 2012, and since then he's had a lonely existence. We will allow Kavan to be relocated, retired the elephant after a very long time here at the zoo, to wildlife sanctuary in Cambodia. I wanted to thank also the Ministry of Climate Change. Lately will join us Mr. Malik Amin, the Special Assistant and Advisory to the Prime. Also, I will thank all of you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, members of the press, ladies and gentlemen, and elephant. I think today is truly a historic day where we're celebrating Kavan's farewell, and we must be proud of all the Pakistanis and organizations, the Pakistani organizations that raised their voices to help send Kavan off to a beautiful retirement. And this started in Pakistan and went worldwide. We also want to thank the Pakistani lawyers that helped get a historic landmark judgment giving the elephants the rights to freedom. And that is truly an incredible thing. And worldwide, people are
astonished at this incredible judgment, and Pakistan's taking the lead on that. So that's something we should all be very proud of. And you know, hopefully this is the first of many elephants going on to their retirement, and the zoo is no place for animals. I mean, or cage is no place for animals. And we as Pakistanis especially want to thank Dr. Amir Khalil and the Four Paws team for coming and doing so much. We're very grateful. And Amir, you have a magic with animals, truly. And it's incredible the way you sang Frank Sinatra, the way you connected with Gavin. And you, I just would like to say, you must have a true, pure soul to be able to connect with Gavin the elephant the way. And when I see him with you, it brings tears in our eyes. And also want to thank my team, Adil, and the rest of the team at Unicorn Black for helping play a role in getting this event together. And also, we reached out to some of the artists, Pakistani artist community, to give some of their time today. And I want to thank those that agreed. There's Khomarian, who are also very involved. A person I thought of was Natasha Beg, not only because she's an incredible singer, but she's also an animal rights lover, and she's always posting for animal rights in Pakistan. And she's one of our prides of Pakistan. Big round of applause. Thank you. Hello everyone, hi. Having me here. I think this is the best day of my life because I'm here for Gavin, and you guys made it possible for me. I think I need to remove my mask. And thanks to Jonathan also for joining me, and thanks to Harun for making this happen, and thanks to Dr. Amir, he's been great, and the whole team, Celeste and everyone. And so yeah guys, ज़्यादा बात नहीं करूँगी, and I just want to say one thing, that I like to perform when people are performing with me. So are you guys ready? Yes. Will you guys be singing with me? Yes. Yeah, okay, that's great. So I'll start off with a song for which I'm known for, and that is Coke Studio song Shikwa Jawab Shikwa, and the poetry is by Sir Allama Iqbal. So here we go. Yeah, perfect. Come on everyone! ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं, महफिल में दोष रहूं। क्यों मैं ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं, महफिल में दोष रहूं। नाले बुलबुल के सुनूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हम तन गोश रहूं। हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूं। जुरत आमोज़ मेरी ताब सुखन है मुझको, जुरत आमोज़ मेरी ताब सुखन है मुझको, जुरत आमोज़ मेरी ताब सुखन है मुझको। शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, है मुझको। शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। है बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर हैं हम, किस्साए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम। साज़ खामोश है फरियाद से मामूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम। ए खुदा शिकवाए, ए खुदा शिकवाए अरबाब वफा भी सुन ले, खुदा शिकवाए अरबाब वफा भी सुन ले। ए खुदा शिकवाए अरबाब वफा भी सुन ले। I think Dr. Amir needs to see this. खुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, खुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, खुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, खुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। कहीं मसजूद थे पत्थर, कहीं महबूब शजर।
तुझको मालूम है, लेता था कोई नाम तेरा। 1 2 3 कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। तूने तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम, जोर से कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम। ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, लौह कलम तेरे हैं, लौह कलम तेरे हैं, लौह कलम तेरे हैं। Thank you, you guys are amazing. So, एक आखिरी गाना है. So this last song is also, I selected this song especially so that you guys can sing along with. हो पढ़ पढ़ इल्म ते फाज़ल हो ते कदे अपने आप नू फड़िया ना हो भज भज वड़ना मंदर मसीह बस करियो हो यार मो बस करियो यार बस करियो यार मो बस करियो यार के अलफ तेरे दर का अलफ तेरे दरकार बस करियो हो यार मो बस करियो साया अल्लाह साया अल्लाह साया साया ओ अल्लाह नचाया कर भैया नचाया कर धैया 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 तेरे इश्क नचाया कर भैया पूरी खबर न लिया तेरे इश्क नचाया कर भैया धैया धैया तेरे इश्क नचाया कर धैया धैया अल्लाह साया अल्लाह अल्लाह साया अल्लाह साया साया हो अल्लाह as per its habitat. So thank you all for joining us at such a short notice, and we are here, as I said, to bid farewell, and as an interim chair of the board, the Ministry of Climate Change is trying to improve the environment in this wonderful zoo, which spans over an area of 82 acres, but unfortunately at the moment it is just on an area of 25 acres. So we want to build this new zoo on the modern lines as a requirement
for different species to live a very healthy life in this environment, in this beautiful city of Islamabad. Thank you. 70 years, we've been lucky to have his teachings with us. Assalamu alaikum to all. I welcome all the important. I congratulate Mir Khalil, Dr. Mir Khalil, and his team for very hard work, exemplary work they have done to improve the condition of the elephant and the brown bears, and credit goes to his devotion, his hard work, his efforts. I also congratulate Dr. Anis, who has been helping this team to overcome any problem in achieving the objectives of sending this elephant out of our country. Moreover, I'm grateful to Dr. Khalil for making an example that all that Pakistanis could not do, he has done it. And all that which could not be done. At this time I have, please don't mind if I say, I have not come here to celebrate. I have come here to watch the गलतियां हुई, जानवरों का ख्याल न रखा गया, उनको तकलीफ पहुंचाई गई, हम सब I'm sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all. It's a poem by Baba Bulle Shah, and it says, "Paave tu jaan na jaan, vehde aavad mere. Whether you know or not, come into my courtyard. I am sacrificed to you, come into my courtyard." And thank you, Spudley, for allowing me to play your guitar, because I just broke a string on mine. Paave tu jaan na jaan, vehde aavad mere.
It's an absolute pleasure to announce Mr. Malik Amin. He's a Pakistani environmentalist. You have such a long list of accomplishments. He's the Vice President of ICUN and the Special Assistant to the Prime Minister. आप सब लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। आज आपको मदऊ इसलिए किया है कि ये कवान की कहानी का एक और कदम जो है वो आगे बढ़ रहा है। जैसे कि आपको पता है कि ये कवान हाथी बच्चा था जब यहाँ पर आया था और श्रीलंका से एक तोहफा मिला था और तकरीबन 35 साल इसको पाकिस्तान में हो चुके हैं और बहुत खुशियाँ बांटी हैं इसने यहाँ पे और हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे ज़ू में आने वालों के लिए ये एक मेजर अट्रैक्शन भी थी और उसके साथ साथ बहुत अरसा जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस्लामाबाद के वासियों के लिए ये बड़ा खुशियों का बायस था। और इसकी कहानी में ये एशियन एलिफेंट है और ये एक हर्ड एलिफेंट होते हैं, मतलब इनकी एक हर्ड मेंटालिटी होती है और इन हाथियों की एक ज़रूरत होती है कि और हाथी भी इनके आसपास हों। तो इनके साथ एक इसीलिए स्पेशली एक फीमेल हाथी उस वक्त मंगाई गई थी जो कि सहेली जिसका नाम था। और फिर 2012-13 में अनफॉर्चुनेटली जब सहेली की डेथ हो गई तो उसके बाद ये हाथी अकेला रह गया था और अकेला रहने की वजह से इसको फिर इश्यूज होने शुरू हो गए और उसमें आप सब लोगों को जैसे पता है कि यहाँ पर ये एक इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस चीज़ को उठाया कि यहाँ पर अकेला हाथी है और इसको मेंटल इश्यूज भी हो रहे थे और इसके लिए वो एक अनकंफर्टेबल टाइम था हाथी के लिए, तो वो हमारे लिए भी तकलीफदेह था। और अब हमारे लिए एक और तकलीफदेह फैसला ये था कि इस हाथी को हम यहाँ से एक ऐसी सेंचुरी में भेजें जहाँ पर इसको और हाथियों के साथ अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले। वो जैसे मैंने पिछली बार भी जब यहाँ 2 महीने पहले आए थे तो हमने यही कहा था कि ये एक हमारे लिए एक इट्स अ सैड डे बट इट इज़ आई थिंक द राइट स्टेप टू टेक फॉर कवान। और इसकी वजह ये है कि ये जहाँ जा रहा है हमने सारा उसको चेक किया है, उसकी तस्वीरें भी अब हमारे पास मौजूद हैं। जो इंक्लोजर बनाया गया वो मैं मीडिया के साथ शेयर भी कर लेंगे कल परसों। वो एक पूरा 25,000 एकड़ का सेंचुरी है कंबोडिया के अंदर जहाँ और बहुत सारे हाथी भी हैं और वहाँ पर इसके लिए एक सेपरेट वहाँ पर बनाया गया इंक्लोजर जिसमें ये तकरीबन आई थिंक 10 एकड़ और 10 पहला जो उसका वहाँ पे इंट्रोडक्शन होगी वो 10 एकड़ एरिया में ये हाथी वहाँ पर रहेगा। लेकिन इसके साथ उन्होंने बैरिकेड्स लगाई हैं तो ये हाथी दूसरे हाथियों को देख सकेगा, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकेगा, लेकिन एक बीच में एक लकड़ी की फेंस भी है, वो तस्वीरें मुझे मौसूल हुई हैं। तो इंशाल्लाह हमने जो 2 महीने ये अभी इस पे टाइम लगा है वो इसी वजह से लगा है कि हम ये चाहते थे कि एक तो ये कि इसकी हेल्थ उस कंडीशन में हो कि ये ट्रैवल कर सके और सेफली अपनी उस सेंचुरी में पहुंच सके। उसके लिए आई वुड लाइक टू थैंक पोरपाज एंड डॉक्टर आमिर खलील and his team who came specially for this purpose, and they were here for the last I think month. You've been here. So since 22nd August they've been here, and they have brought him back to the health in which he can travel. And we were waiting for this health certificate to be issued before we could allow him to travel. So that health certification is done. There was an expert committee. वो हमने ये IWMB हमारा जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उसमें हमने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी जिनके पास हमने ये इशू छोड़ा हुआ था कि आप इसके सारे SOPs पूरे करें, इसकी हेल्थ को ओके करें और जो फैसिलिटी है इसको जाने का जो प्रोसेस है उसको ओके करें और फिर वहाँ पे फैसिलिटी को चेक करवाएं कि वो किस किस्म की है। तो ये सारी चीज़ें इन तमाम मराहल से गुजरने के बाद अब इंशाल्लाह ये 25 को हमारी जो IWMB का बोर्ड है उसके पास इसका केस एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन के साथ जाएगा और इंशाल्लाह जो कमेटी की रिकमेंडेशन है वो यही है कि इसको अब ट्रैवल करने दिया जाए। और उसके लिए 29 तारीख को यहाँ पर इसकी सुबह 11 बजे यहाँ से ट्रैवल किया जाएगा। ये आप पीछे कंटेनर देख रहे हैं, ये स्पेशल बनाया गया था और उसमें इसको ट्रेनिंग दी गई है। ये एकदम नहीं हो सकता था, हमारे हाई कोर्ट ने भी फैसला किया था कि इसको जल्द अज जल्द मुंतकिल किया जाए, लेकिन हमें टाइम इसलिए लगा कि इसको ये प्रॉपर एक
यूज़ टू किया जाए इस फैसिलिटी के साथ कि उसके अंदर जाके ये कंफर्टेबली उसके अंदर जा सके और उसके बाद इसकी ट्रैवलिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। तो 29 तारीख को कवान हमसे जुदा होगा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि ये ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पर कवान की बाकी ज़िंदगी, ये तकरीबन 36-37 साल का हो चुका है और इसके बाकी जो नॉर्मल एज है वो 45-44 ईयर्स होती है एशियन एलिफेंट की। तो जो बाकी के साल रह गए वो एक हर्ट में खुशी के साथ रहेगा। तो हमें खुशियाँ बांटने वाला ये कवान, हम अब इसको ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ पर ये इंशाल्लाह खुश रहेगा और जो बाकी के इसके साल हैं हमें उम्मीद है कि वो जो इसने हमें खुशियाँ बांटी हैं शायद हम इसको वो खुशी दे सकें कि वहाँ पर ये अपना रह सके। और तो 29 तारीख को इसके लिए एक स्पेशल प्लेन आ रहा है, वो रशियन कार्गो प्लेन है जो कि चार्टर किया गया है और वो उसके ज़रिए ये ट्रैवल करेगा और कंबोडिया जाएगा। और जिस तरह मैंने कंबोडिया बताया वहाँ पे जहाँ लैंड करेगा उसके करीब वो सेंचुरी है और वो वर्ल्ड क्लास सेंचुरी है जहाँ पर और दुनिया के जो हाथी हैं जो कि इस तरह रेस्क्यू किए जाते हैं या उनको वहाँ पर अपना रिटायरमेंट के बाद भेजा जाता है, उधर ये इसको हम भेज रहे हैं। उनके साथ भी एग्रीमेंट है, वो प्रॉपर एग्रीमेंट हो गई है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये हाथी जिस तरह हमें खुशियाँ बांट के गया है तो अब बाकी की अपनी जो साल रह गए हैं इसके उसमें वो खुशियों के साथ और अपने दूसरे हाथियों के साथ रह सकेगा। कोई और आपके सवालात हैं तो आप? अरे सर, बड़ा अच्छा फैसला लिया है कि काउंट ऑफ भेजते हैं, लेकिन क्या ये अच्छा ना होता जैसे कोर्ट ने कहा था कि सेंचुरी में भेजा जाए तो यहीं पर सेंचुरी बनाई जाती और साइटीज एक्ट के तहत ही फीमेल हाथी को वहाँ से लाया जाता, क्योंकि ये भी किसी साइटीज एक्ट के तहत। देखिए वो ऑप्शन भी थी, लेकिन अभी इसके चूँकि एक तो इसकी रिटायरमेंट की एज आ चुकी है, ये 35-36 साल के बाद हाथी जो है वो आप रिटायर इंटरनेशनली कर दिया जाता है। तो रिटायरमेंट के बाद वो एक लिविंग सेंचुरी है, 25,000 एकड़ के ऊपर मुहित है, वहाँ बहुत सारे हाथी मौजूद हैं। अब इस स्टेज पे एक और बच्चे हाथी को यहाँ पर लाना और वो इतना फीजिबल नहीं था, तो इंशाल्लाह हम इस एरिया को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे। इसके लिए हम प्रॉपर स्टडी करवा रहे हैं। ये इस्लामाबाद का असासा है, जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये इस्लामाबाद का असासा है, इस्लामाबाद के लोगों का असासा है और इंशाल्लाह इसको इस्लामाबाद के लोगों के लिए बेहतरीन सेंचुरी बनाएंगे या इसको जू बनाएंगे इंडिजिनस एनिमल्स का, और ओपन केज जू होगा, मतलब पिंजरों के अंदर बंद करके आप वाइल्ड एनिमल्स को लाकर उनको 10 बाय 20 के पिंजरे में बंद कर दें तो वो ठीक नहीं है। अब जो नया फिलॉसफी है वो ये है कि ओपन केज जूज होने चाहिए। उसके लिए हमारे पास बहुत सारी कंपनीज भी आई हुई हैं ताकि जानवर भी खुश रह सके और जानवरों को देखने वाले भी खुश रह सके और वो इससे तरबियत भी आ सके। अच्छा सर, ठीक है, अदालती हुक्म तो है जिसके तहत आप ये फैसला ले रहे हैं, लेकिन इस तमाम तर का क्रेडिट आप किसको देते हैं? किसी तंजीम को देते हैं, हुकूमत पाकिस्तान को देते हैं? देखिए इसमें ये कंबाइंड एफर्ट है सबका। इसमें हमारे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने भी बड़ी इस पर नोटिस भी दिया और उनका भी ये दिल था कि जल्दी हो जाए। एज अ गवर्नमेंट हमारा ये दिल था कि हम वो फैसला करें जो कि हाथी के लिए बेहतर और इसकी प्रोसेस पूरा हो इसका, और उसमें जल्दबाजी में हम वो चीज़ ना करें जो यहाँ पर पहले हादसा हो चुका है, और इसीलिए हमने इस पर टाइम भी लगाया। उसके साथ साथ ये 4 पॉज वाले हैं, फ्रेंड्स ऑफ इस्लामाबाद जू हैं, इन सब ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है कि इस हाथी को एक जानदार एक जानवर है, और हमारा दीन भी हमें यही कहता है कि अगर आप किसी जानदार के साथ, ये बेजुबान जानवर हैं, ये बता नहीं सकते आपको इनकी क्या प्रॉब्लम है, तो हमारे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें फरमाया कि अगर हम इनके साथ कोई नेकी करेंगे तो ये नेकी जो है ये बड़ी बेहतरीन दर्जे की होती है, क्योंकि आप एक बेजुबान के साथ एक नेकी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमने उसी नीयत के साथ ये किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मेरी बात हुई थी, खुद उनकी भी बिल्कुल यही राय थी कि इसको अब रिटायरमेंट इसकी आ गई है तो रिटायरमेंट के बाद एक ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ पर ये बाकी हाथियों के साथ एक हर्ड एनिमल है और ये हर्ड के साथ रहेगा तो खुश रहेगा, और हमारी नेक ख्वाहिशात अब इस जर्नी में कवान के साथ। अच्छा सर, मेरा सवाल है बिल्कुल बेजुबान की बातों को समझना बहुत मुश्किल है। हम बाहर से तो मंगवा लेते हैं, जो मेडिकल टीम की हो या वेटरन बाहर से मंगवा लेते हैं, जिसका मतलब है कि क्या पाकिस्तान के पास ऐसे कोई माहिर बंदे नहीं हैं जो यहाँ पर जानवरों की नेचर को समझ सके, और कावन के बाद क्या कोई हाथी यहाँ पर आएगा या फिर मुकम्मल किसी भी हाथी के यहाँ पर आने पर बैन होगा?
देखिए अभी तो साइटीज़ के बड़े स्ट्रिक्ट लॉज हैं कि ये इस तरह के एनिमल्स जो हैं वो अपनी ही एनवायरनमेंट में रहने चाहिए और वो जो उनकी लोकलाइज एनवायरनमेंट होती है उसके मुताबिक रहना चाहिए। अभी कराची ये पेशावर जू का एक केस चल रहा है जहाँ पर 2 हाथी वो इम्पोर्ट करना चाह रहे थे, उसको हमने अपोज किया है इसी बेसिस पे कि ये हमें इंडिजिनस जो यहाँ पे लोकल हमारे पास जानवर हैं उनकी ये एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में हम उन्हीं जानवरों को रखें जो कि यहाँ पर लोकल इंडिजिनस एनिमल्स हैं हमारे, उनको ओपन केज जूज में रखें ताकि लोग उसको एंजॉय कर सकें। वो एक ज़माना था जब आप एक्जॉटिक एनिमल्स ले आते थे, बर्फानी चीते जो साइबेरिया के हैं उनको लाकर आप जूज में डाल देते थे, तो वो मेरे ख्याल में अब हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम इस किस्म के एक्जॉटिक एनिमल्स लाकर यहाँ पर वो उसमें आप जुल्म कर रहे होते हैं उस जानवर के साथ भी। जो बर्फानी बेचारे साइबेरिया का रहने वाला चीता है वो इस्लामाबाद में आके कैसे रह सकता है, आप कितनी बर्फ की सड़े रखेंगे उसके लिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमें ये करना चाहिए कि जो लोकल यहाँ की हमारा अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया हुआ है पाकिस्तान पे, यहाँ पे बहुत ऐसे जानवर हैं, एक्जॉटिक जानवर हैं जो कि यहाँ पे अपने मौजूद हैं, उन जानवरों की हैबिटाट के अंदर उनको रखा जाए और उसको लोग एंजॉय कर सकते हैं। ये पॉलिसी सिर्फ यहीं के लिए होगी या जैसे आपने नहीं, हमारी ओवरऑल पॉलिसी अब यही होगी। देखिए जो चीज़ बन चुकी है वो तो ऑलरेडी है, लेकिन हमारी पॉलिसी अब यही है कि हम पाकिस्तान के इंडिजिनस जानवरों की अव्वली तो हमारा ये कि उनकी अपनी हैबिटाट में उनकी हिफाजत करें। जिस तरह आपने देखा है कि मारखोर हमारे नापैद हो रहे थे, उनकी हमने एक प्रॉपर पॉलिसी के तहत किया, वो बढ़ गए हैं अब इतने। इसी तरह यहाँ पे हमारे जो लेपर्ड है, कॉमन लेपर्ड, वो यहाँ पे आपको अब जंगलात में नजर आता है जो पहले खत्म हो गया था यहाँ पे। तो इसी तरह हमारी पॉलिसी है कि उनको पहले तो स्लो लेपर्ड है, वो एक सबसे दुनिया का एक्जॉटिक एनिमल है और इस वक्त पाकिस्तान में वो बढ़ रहा है। तो ये तमाम जो इंडिकेशन है ये शो करती है कि आप वो हैबिटाट क्रिएट करें एनिमल के लिए ताकि वो अपनी हैबिटाट में रह सकें, और उसके साथ आप नेशनल पार्क्स बनाएं जहाँ पर लोग जाके उनको उनकी अपनी हैबिटाट में देख सकें। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं अभी भी उनके पास से इसी चीज़ पर डिस्कशन करके आ रहे हैं कि हम नए नेशनल पार्क्स बना रहे हैं। हमारे पास 30 नेशनल पार्क थे और अब हमने सिर्फ वो जब से पाकिस्तान बना वो 30 नेशनल पार्क थे, और हमने आते साथ पिछले एक साल के अंदर इसको 30 से 45 कर दिया है। पंजाब में पहली बार नेशनल पार्क्स बन रहे हैं और 5 या 6 नेशनल पार्क्स हम अनाउंस कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते तक जाके उसका इफ्तिताह करेंगे। जीबी के अंदर अभी हमने 2 बहुत बड़े नए नेशनल पार्क्स, एक नांगा पर्वत और एक हिमालय जो है उसको नोटिफाई किया है। तो हम चाहेंगे कि उन्हीं हैबिटाट में इनको प्रोटेक्ट किया जाए ताकि वो अपने हैबिटाट में रह सकें और उसके साथ लोग उन पार्क्स में जाके इको टूरिज्म भी कर सकें और कोशिश करके इनको देख भी सकें इनकी अपनी हैबिटाट में। पहले जानवर लाए गए हैं जो इंडिजिनस नहीं, उनको वापस देने के क्या करें? नहीं, जो जूस के अंदर हैं उनको तो हम वहाँ पे अभी जो हैं वो उसी के अंदर रख रहे हैं उनको, लेकिन हमारी अब पॉलिसी है कि ये देखें यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये भी देखा है कि स्नो लेपर्ड को 10 by 10 के पिंजरे के अंदर रखा हुआ है और वो सालों से रह रहा है उधर। तो ये आप जुल्म कर रहे हैं उस एनिमल के साथ, तो ये इस जुल्म की पॉलिसी के हम खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि ओपन इंक्लोजर जू हो, और ये आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जहाँ पे हम खड़े हुए या तो यहाँ पे सेंचुरी बनेगी एनिमल्स की या फिर यहाँ पे एक ओपन इंक्लोजर जू बनेगा और उसकी हम इंशाल्लाह दुनिया की बेस्ट फैसिलिटी यहाँ पर आपको क्रिएट करके फैसल जलील सर, थैंक यू वेरी मच। आप यार ये तो तस्वीरें शॉट है ये थोड़ा साइड पे हो जाए। बैक करें ना बस हमने मिस्टर को लेना है बहुत हां जो तूने कहा अब फिल्म नहीं है बहुत मसले का कलर चेंज हो गया पहले काम आएंगे। Cambodia, but still feeling but